Can it broadly classified into two classes on the basis of biological elements, and another is physical, and this is the enzyme biosensor, microbial biosensor, antibody biosensor. This is broadly come in a biological animals. Now come transducer animals. तो अगर ट्रांसड्यूसर के बेस पर हम डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने क्लासिफिकेशन पहले ही दिया था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो देयर आर 4 सब टाइप: एम्प्योमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, इम्पेडीमेट्रिक एंड वोल्टामेट्रिक। अगर हम बात करें एम्प्योमेट्रिक ट्रांजिशन का, तो ये जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, इसके बीच की जो भी सिग्नल आती है उसको ये मेजर करता है। इसमें क्या होता है दैट function by producing the current where the potential is applied between the two electrons, and is generally response time, dynamic, ranges and sensitive. And here you can see that is a picture where the oxygen is only permeable in this solution. What solution? This is a solution that is a potassium chloride, and here two electrodes in which between the current will passes, and the here solution, that solution and this and that here जो हमारा जो बायोसेंसर है ग्लूकोज ऑक्सीडाइड्स, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन विल गो रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। जो हमारा जो हमें जो डिटेक्ट करना है वो उससे सिर्फ ऑक्सीजन पास करेगा, और करंट के थ्रू हमारा जो भी बायोसेंसर हम यूज कर रहे हैं दैट विल गो फॉर द रिएक्शन विद दिस and go for the result. Yes, you can see that systematic diagram of simple ampliometric biosensor. This is a very simple, and here applied central platinum cathode and anode silver anode, and that this generates the current which carry between the two electrodes by means of saturated solution of potassium chloride, and this electrodes compartment is separated from the biolites, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दिस इज द बायोसेंसर जिसको हम कर रहे हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज बाय अ थिन मेम्ब्रेन परमेबल। इसमें से जो हमारा ऑक्सीजन होगा वही परमेबल करेगा, और एनालाइज सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द बायोलाइट्स बाय अनदर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैं बोला कि दोनों ही का जो कंपार्टमेंट वो डिफरेंट रहेगा, सेपरेट रहेंगे, एक लेकिन उनका जो मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी permeable, and the biosensor is normally about the 1 centimeter in diameter and but has been sealed down to 0.25 meter diameter using the PT wire cathode within a silver plated steel needle anode and utilizing the deep coated membrane. वहां से जो रिएक्शन होगा then its reaction go for the transducer, and that is form in a digital form. अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक। This is a potential based electrical cell with the, that will be work on a very low current value, and in this type of sensor that provide जो भी response करेगा that will be response in a logarithm. What the mean of logarithm? That means exponent और power form में जो भी हमारा result आएगा by the mean of the high energetic range में, that biosensor have frequently complete by monitoring producing the electrode photolights lying on the synthetic substance and it covered by a perform that polymer with the solution some enzyme is the connector. Now come impedimetric. This is a very important, और ये जो हमारा है impedimetric बायोसेंसर, दिस रिस्पॉन्स इसका जो इंडिकेटर होगा वो बहुत ही ब्रॉडली रेंज में होता है, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, और दैट मेजर द चेंजेस इन द चार्ज कंडक्टेंस एंड capacitance at the sensor surface as the selective binding of the targets occur, and that sensor may be enzyme, lactin, nucleic acid receptor, कुछ भी हो सकता है, और these are the very specific for your analytes, or that is form in the frequency, and it is give the value in the digital. Now voltameric. Volta
वोल्टामेट्रिक जो बायोसेंसर होता है, दैट इज डिटेक्ट इफ योर क्वांटिटीज, इफ योर एनालाइट्स इन द वेरी माइन्यूट क्वांटिटी that can be measured by with this available current which are generated between the two electrolyte solution. And in this biosensor, carbon glue electrodes customized with the hemoglobin, and that is in which includes the four prostatic group of the hemoglobin. And in this biosensor, reversible oxidation and reduction produce of hemoglobin. So optical, in this optical biosensor, we here use only optical fibers like a sensor, and used for the determine the concentration of analytes on the basis of the change the optical, that is completely based, मतलब ये जो हमारे लाइट से हमारे जो वेव निकलेंगे, जो हमारा लाइट की इंटेंसिटी है, जो हमारे लाइट सेंस है, उनके थ्रू जो हमारा बीम क्रॉस करेगा, और जो हमारा यहाँ देखिए हियर कि हमारा ये जो सेंसर है, और जो ये हमारा सेंसर है, दिस इज सॉरी, दिस इज द सेंसर एंड दिस इज द लाइट्स, और इनके बीच रिएक्शन हुआ, तो जब हम बीम क्रॉस करेंगे, जो हमारा लेजर होगा, जो हमारा फोटो डिटेक्टर होगा, वो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के काम करेगा, वो क्रॉस करेगा उस रिएक्शन से, और वहां से वो क्रॉस होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट वैल्यू आएगा, वो हमें वैल्यू मिलेगा। तो इसमें जो फोटो डिटेक्टर्स लगे रहेंगे, वो मेजर करेंगे आपके एग्जैक्टली कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स का। कैलोरीमेट्री जो हमारा हीट, it is used for the calculating the heat of biochemical reaction by measuring the temperature difference between the reaction vessel and isothermal heat sink surrounding. अगर हम वेरेबल बायोसेंसर की बात करें, तो जो भी हमारे बॉडी में जो हम पहन सकते हैं, जो जैसे इतनी सारी हमारे वो ब्रेसलेट आते हैं, वॉच आते हैं, नोज के लिए बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, जो यहाँ पर मैंने शो किया है, कैन यू सी देयर, पोजीशन है, हमारा पोजीशन सेंसर है, एयर फ्लो सेंसर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक सेंसर, इन सब से आप बॉडी में वेयर कर कर उस सेंस के थ्रू, सेंसर के थ्रू आपकी एक्टिविटी को, वो आपकी जो जो वेव्स, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी, उसको कैलकुलेट कर वो बताता है, पार्टिकुलर रिएक्शन करता है, उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में उसको बताता है। नाउ कम फिजिकल बायोसेंसर। तो देयर आर टू टाइप, फिजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर और एक थर्मो बायोसेंसर। Physio, and that physio is based on the law of affinity interaction recording. इसमें लॉ ऑफ इंट्रैक्शन पे बेस होता है, और ये जो होता है, they are having the mobile surface with antigen, antibody, a molecular stem, polymer, ये सारी जो एज ए सेंसर हम यूज करते हैं, एंड दैट सेंसर आर यूटिलाइज द piezoelectric effect, and that is measure the changes in a oscillating strain, pressure, force by converting them into electric charge. इसको कहते हैं piezoelectric sensor, and this generated piezoelectricity is proportion to the pressure and that applied to the solid piezocriystal material, and that is detection declared by using the nanomorph particles. ऑसिलेटरी सिस्टम होता है, इसमें इंट्रैक्शन के बेस पे एफिनिटी, मतलब जब हमारे बाइंडिंग होती, उसके बेस पे ये जो क्वांटिटी हमारा जो देता है, जो हमारी वैल्यू देता है, दिस इज द फिजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। अब हम थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर की बात करते हैं। तो दैट इज यूज टू मेजर और एस्टिमेट द सीरम। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सीरम एस्टिमेट करना है, सीरम कोलेस्ट्रॉल को, तो एज अ कोलेस्ट्रॉल ऑब्टेन ऑक्सीडाइज थ्रू द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज, एंड देन इट विल बी प्रोड्यूस व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड। और ऐसे ही थर्मोमीटर जो हमारे हम यूज करते हैं ग्लूकोज असेसमेंट के लिए, यूरिक असेसमेंट के लिए, तो दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द थर्मल, मतलब हीट बेस पे जो हमारा बायोसेंसर काम करता है, दैट इज, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इमोबिलाइज एंजाइम बीट्स है, दैट ब्लू, ठीक, और यहाँ पर हमने हीट प्रोड्यूस